Okay. Very good evening to all of you. आशा करता हूँ आप सब एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को. आगे बढ़ते हैं बच्चों. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चल रहा है. एंड नाउ विल गोइंग टू डील विद क्वेश्चन नंबर 15. एक बार क्वेश्चन नंबर 15 रीड करता हूँ, ध्यान दीजिए जरा. Okay. Generalize the following bill transaction as on 31st July 2011 in the books of Omkar Nath. Number 1, renewed Vartak's acceptance of rupees 6,000 due on 31st July 2010 by accepting cash rupees 2,000 and drawing a bill for the balance with interest at the rate 10% per annum for 2 months. It's a case of renewal. There will going to be 4 journal entry. Number 1 will be for dishonorable, then entry for interest charging, part payment, then new acceptance. After that, B part, accepted a bill of rupees 5,000. Accepted a bill. Try to understand line. Omkar Nath is saying to you, accepted a bill means Omkar Nath here will going to play a role of drawee. Accepted a bill of rupees 5,000 at 3 months at site drawn by Avinash. Means Avinash is a drawer for the amount due to him 6,000 and balance paid in cash. C transaction, Fateh Chand honored his acceptance of rupees 9,000 which was deposited into bank for collection and bank debited rupees 80 for bank charges. Means this is a case where already bill is sent to bank for collection and such bill is honored and bank debited a charges of rupees 80. D transaction, bank informed that Lakshmi's acceptance means Lakshmi here will going to be drawee of rupees 14,000 which was discounted dishonored. जो डिस्काउंटिंग करवाया था डिसऑनर्ड हो गया. पेड नोटिंग चार्जेस रुपीज 85 रिनीव्ड एट लक्ष्मीज रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ विथ इंटरेस्ट 215 का इंटरेस्ट ऐड करके नया बिल ड्रॉ होगा. इन ऑल वी हैव टोटल 4 ट्रांजैक्शंस, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे जहां पर 2 जनरल एंट्रीज 4 जनरल एंट्रीज आने वाले हैं. इन द बुक्स ऑफ ओमकार नाथ, journal entry, column for journal entries, date, particulars, ledger folio, debit rupees and of credit rupees. Let's start with first transaction. Question, renewed Vartak's acceptance of rupees 6,000 due on 31st July by accepting a cash 2,000 and drawing a bill for balance with interest at the rate 18% per annum for 2 months. So first of all, in date column 31st July 2011 and for A transaction we are passing journal entry number 1 where first of all we need to dishonor bill. So for that entry will be drawee Vartak hai, so Vartak's account debit to bills receivable. Bill amount is rupees 6,000 and then renewal procedure. In case of renewal procedure, first entry used to be of for interest, Vartak's account debit to interest account, and we need to calculate interest, balance amount multiplied by rate divided by 100 multiplied by month divided by 12. अगर आप उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे ना तो आउट ऑफ 6,000 2,000 is paid in cash, then remaining amount will be 4,000. Rate of interest given is 18%, that is 18 divided by 100, and the month given is 2 months, 2 divided by 12. सामने आपके इक्वेशन सॉल्व किया. अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट and amount for interest, that is 120. Narration, even though I am not discussing anything about narration, but journal entry without narration कोई मार्क्स का वेटेज नहीं होता है.
समटाइम्स some examiners used to deduct full marks, पूरा काट लेते हैं जर्नल एंट्री का जितना होता है, but by rule every narration consists of half marks और sometime 1/4 भी होता है, 1/3 भी होता है, but narration लिखना बहुत जरूरी है. यहाँ पर narration will going to be like this: interest charged on balance at the rate 18% for 2 months. At the rate 18% for 2 months. Next, in case of renewal, part payment entry, cash account debit to Vartak's account. Clearly it is given as कि part payment is of rupees 2000. Amount will going to be 2000. Narration being part amount received in cash. Now, for a transaction, fourth entry, for new acceptance का entry होता है, bill receivable account debit to drawee Vartak है. So bill receivable account debit to Vartak's account. इसमें balance amount that is 4000 plus interest amount plus interest 120. So amount will going to be 4120 on debit and on credit side. Narration में clear करने का, being new acceptance received along with interest, being bill drawn and new acceptance received along with interest. That's it. A transaction is over. Now let's move towards B transaction. B transaction पढ़ता हूं मैं एक बार फिर से, ध्यान देना. Accepted a bill. वर्ड पे ध्यान दो. Accepted. ओमकार नाथ ये लाइन बोल रहा है. Accepted means ओमकार नाथ will going to play a role of drawee. A bill of rupees 5000 at 3 months at site drawn by Avinash for the amount due to him rupees 6000. मतलब अविनाश को 6000 देना है, ड्यू टू हिम 6000 देना है, जिसमें से 5000 का मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं एंड बैलेंस पेड इन कैश. तो बचेगा कितना बैलेंस? 1000 विल गोइंग टू बी पेड इन कैश. तो एंट्री देखो बच्चों किस ढंग से बनेगा. वो इज रिसीवर, हम ये सब किसी को दे रहे हैं? अविनाश को. तो सो अविनाश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल टू कैश. अविनाश का टोटल बैलेंस अमाउंट है 6000. वी एक्सेप्टेड बिल, हमने बिल साइन करके दिया उसको. तो दैट एक्सेप्टेंस वाज रुपीज ऑफ 5000 एंड बैलेंस पेड इन कैश. डेफिनेटली अगर मैं 6 में से 5 का बिल एक्सेप्ट करता हूं तो बैलेंस अमाउंट विल गोइंग टू बी 1000. नरेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा being bill accepted and balance paid in cash, being bill accepted and balance paid in cash. Next, C transaction. रीड करता हूं, देखो क्या लिखा. फतेहचंद honored his acceptance. मतलब फतेहचंद honored his acceptance means वो particular person is a drawee of rupees 9000 which was deposited into bank for collection. मीन्स ओमकार नाथ ने वो बिल बैंक में डिपॉजिट किया था फॉर कलेक्शन और वो बिल ऑनर्ड हुआ, बट 80 रुपीज का बैंक चार्जेस बेयर करना पड़ा. तो बच्चों ऑनर का एंट्री आता है, अमाउंट डायरेक्ट बैंक में जमा हो जाता है. सो बैंक अकाउंट डेबिट, बट 80 रुपीज डिडक्टेड, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड एंड द बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जो ओपन हुआ था वो ऑनर होने पे कैंसिल हो जाएगा. टू कैंसिल दैट बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जो पहले डेबिट हुआ रहता है अब वो क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा. अब अमाउंट लिखने का प्रोसीजर देखो बच्चों. बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने अमाउंट का था? 9000. तो क्रेडिट में 9000 आएगा. बैंक चार्जेस विल गोइंग टू बी 80 रुपीज. तो 9000 में 80 माइनस करके जो बचता है दैट विल गोइंग टू शो इन बैंक अकाउंट. दैट इज 8920. बैंक चार्जेस विल बी ऑफ 80 रुपीज and then total amount will going to be of 9000. Narration में clear करूंगा. A bill sent for collection honored, bill sent for collection honored and bank charges debited, and bank charges debited. Next, D transaction. D का transaction पढ़ता हूं. Bank informed that Lakshmi's acceptance of 14,000 which was a discounted dishonored. मैंने डिस्काउंटिंग करवाया था और वो डिसऑनर हो चुका था. बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, ऑन द कॉन्ट्री उस पे नोटिंग चार्जेस भी पे हो चुका था. रिनीव्ड, उसको रिनीव किया एट लक्ष्मीज रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ विथ इंटरेस्ट 215 इंटरेस्ट है. बट बच्चों इसमें कोई पार्ट पेमेंट नहीं है.
आपको एंट्री क्या क्या करना है सुनो। सबसे पहले आप एंट्री करोगे डिसऑनर का, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर ड्रॉई कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मीज अकाउंट डेबिट टू, आपने बिल को डिस्काउंटिंग करवाया था ना, सो बैंक अकाउंट, बिल अमाउंट 14,000 प्लस 85 एज अ नोटिंग चार्जेस, सो अमाउंट विल गोइंग टू बी 14,085, 14,085। अब उसके बाद रिन्यूअल का प्रोसीजर है। नाउ आफ्टर दिस रिन्यूअल का प्रोसीजर है। रिन्यूअल के प्रोसीजर में पहला इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट एंट्री विल बी लक्ष्मीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन डायरेक्टली इन क्वेश्चन 215, so it will going to be 215, 215. And now new acceptance. Now new acceptance का एंट्री होता है बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मीज अकाउंट। पहले का 14,085 पूरा, बिकॉज नो पार्ट पेमेंट इज मेड, नो पार्ट पेमेंट इज मेड, सो फुल अमाउंट 14,085 प्लस इंटरेस्ट 215। तो टोटल होता है बच्चों 14,300, 14,300। That's it. We have completed question number 15. इसका टोटल करके लिख देना, that will going to be a solution of question number 15. Now let's move towards question number 16. 16 की तरफ चलते हैं। Journalize the bill transactions on 31st July 2011 in the books of Aditi. थोड़ा डेट का वेरिएशन है इसमें, आप लोग यही सीक्वल फॉलो करोगे, A B C D। Okay, A. On 10th April 2010, Aarti informs Aditi that Amrapali's acceptance of 12,000 endorsed to her dishonored and noting charges paid rupees 250. It's very common transaction. Normally ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमने ऐसे ट्रांजेक्शंस बहुत देखे हैं। Now B, on 21st April 2010, Aditi renews her acceptance. बच्चों वर्ड पे ध्यान देना, we are passing journal entries in the books of Aditi, and यहाँ पर लिखा क्या है, Aditi renews her acceptance, मतलब Aditi is playing a role of drawee। अमाउंट है 17,000 to Arush by paying cash 2,000। 17 में 2,000 कैश गया, तो रिमेनिंग 15,000 है बच्चों। एक्सेप्टिंग a new bill for 2 months for balance is 15,000, interest at the rate 10% per annum। बच्चों रिन्यूअल का आएगा प्रोसीजर, बट ध्यान देना रिन्यूअल का प्रोसीजर का एंट्री पास करते वक्त आप जिसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हो वो ड्रॉई का रोल प्ले कर रहा है, वो ड्रॉई का रोल प्ले कर रहा है, याद रखना। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, सी पार्ट, सी एडजस्टमेंट। ऑन 15th March 2010, Namrata retired her acceptance to Aditi of rupees 6,500 by paying cash rupees 6,300। ये तो रिटायरमेंट वाला, इट्स वेरी कॉमन, ऑलरेडी वी हैव डन दिस। डी ट्रांजेक्शन, इट्स अ न्यू। On 31st March 2010, recovered rupees 2,500 from the private estate of Sridhar, who was declared as insolvent। हमने 31st March 2010 को 2,500 रुपए रिकवर किए मिस्टर श्रीधर से, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था, अगेंस्ट अ बिल एक्सेप्टेड बाय हिम ऑफ रुपीज 4,000। जबकि हमको श्रीधर से 4,000 का बिल अमाउंट एक्सेप्ट कलेक्ट करना था, विच वॉज डिसऑनर्ड बाय हिम ऑन 29th December। अभी 29 दिसंबर का एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पास ए जनरल एंट्री ऑफ 29th December। सिर्फ इतना लिखा है कि मिस्टर श्रीधर से बिल का अमाउंट 4,000 लेना है और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस का, मींस टोटल अमाउंट जो श्रीधर के पास से ड्यू था दैट वाज 4,100, आउट ऑफ विच वी हैव रिकवर्ड ओनली 2,500 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। ठीक है, चलो बच्चों इसका भी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करता हूं, फिर से एक बार ध्यान देना। ए का लिखा है कि 10th April 2010 को आरती इन्फॉर्म्स अदिति दैट अम्रपालीज एक्सेप्टेंस ऑफ 12,000 endorsed to her dishonored and noting charges paid rupees 250। बहुत सिंपल है बच्चों, पहले स्टार्टिंग में किए हुए सम्स में ऐसे ट्रांजेक्शंस बहुत आए। एक
एंडोर्स किया हुआ बिल जब डिसऑनर होता है तो एंट्री यूज टू बी ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट. नाउ हियर ड्रॉई आम्रपाली, एंडोर्सी आरती है, तो आंसर विल गोइंग टू बी लाइक दिस. आम्रपालीज अकाउंट डेबिट टू आरतीज अकाउंट. इफ नोटिंग चार्जेस इज देयर तो बिल अमाउंट में ऐड करके लिखा जाता है. सो बिल अमाउंट इज रुपीज 12,000 प्लस 250, दैट इज 12,250. 12,250. नरेशन में क्लियर करेंगे. बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. दैट्स इट. ए वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया. नाउ मूव टुवर्ड्स बी ट्रांजैक्शन. बी वाले ट्रांजैक्शन में हूं. ऑन 21st April 2010 Aditi renews her acceptance. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इधर गड़बड़ कर देंगे, मुझे मालूम है. क्या लिखा मालूम है? आप जिसके बुक में एंट्री पास करने जा रहे हो आदिति, आदिति बोल रही है कि आदिति रिन्यू हर एक्सेप्टेंस. मतलब आदिति यहाँ पर ड्रॉई है और ड्रॉई समझ के आपको एंट्री पास करना है रिन्यूअल का. 4 एंट्री तो आएगा, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, बट दैट ऑल एंट्री यू हैव टू पास फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉई. ठीक है. चल, डेट है 21st April 2010. फर्स्ट एंट्री फॉर डिसऑनर इंटरेस्ट. सर इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे निकाला जाता है. पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लेते हैं. इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे निकाला जाता है. अगर आप ट्रांजैक्शन को देखोगे ना तो टोटल अमाउंट इज हाउ मच? बिल अमाउंट इज 17,000, आउट ऑफ विच 2,000 इज पेड इन कैश. तो बैलेंस अमाउंट इज 15,000. बैलेंस अमाउंट इज 15,000. बच्चों 15,000 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 months. तो आपके सामने कैलकुलेशन दिख रहा है. दैट इज आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन जो आंसर सामने आ रहा है that is 250. You can observe that 15,000 multiplied by 10 divided by 100 multiplied by 2 divided by 12. इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 250. क्लियर? चलो नेक्स्ट. आई के बुक में इंटरेस्ट का एंट्री आएगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आरुष अकाउंट. नाउ जस्ट ओनली वी हैव सीन दैट कैलकुलेशन. That is 250. 250 being interest charged at the rate 10% per annum for 2 months on balance amount. Next, part payment. Part payment 2,000 का part payment हो गया बच्चों. 2,000 का part payment हुआ है. Part payment कर रहे हैं, तो therefore entry will be Arush account debit to cash account. That is 2,000. नरेशन में स्पेसिफाई करने का being part payment made in cash. उसके बाद न्यू एक्सेप्टेंस. बी का 4th एंट्री है. न्यू एक्सेप्टेंस एंट्री विल गोइंग टू बी लाइक दिस. ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. हियर ड्रॉवर आरुष. आरुष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. अमाउंट कितना होगा सुनना. आउट ऑफ दैट ओल्ड बिल अमाउंट 2,000 इज पेड इन कैश, मींस बैलेंस 15,000 प्लस इंटरेस्ट 250. तो अमाउंट विल गोइंग टू बी 15,250. बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. हमने एक्सेप्टेंस दिया है. बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड along with interest. Next, सी वाला ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं. On 15th March 2010, Namrata retired her acceptance to Aditi of 6,500 by paying cash rupees 6,300. ध्यान देना, bill amount is rupees 6,500, paid 6,300, means difference 200 will going to be considered as rebate. नम्रता ड्रॉई है. हम अदिति की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं. अदिति ड्रॉवर है, सो रिटायरमेंट का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल. बिल अमाउंट 6,500 है, तो कैश आया 6,300. 200 will going to be considered as a rebate and to bill receivable is 6,500. नरेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा being bill retired before due date. Now D part. डी पार्ट में 2 एंट्री नहीं पास करने. आपको करेंटली एंट्री पास करना है ऑफ डेट 31st March, वेयर वी हैव रिकवर्ड 2,500 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट, जबकि हमको टोटल रिकवर श्रीधर से कितना करना है 4,100. तो कितना रिकवर हुआ उतने से कैश डेबिट
जितने से नहीं रिकवर हुआ उतना bad debts debit then to Sridhar's account. Entry will going to be like this: cash account debit, bad debts account debit to Sridhar's account. Cash recovered 2500. 1600 कैसे आया, 1600 कैसे आया? तो मैंने देखा पहले श्रीधर का ड्यू बैलेंस कितना है, 4000 बिल अमाउंट प्लस 100 नोटिंग चार्जेस, मींस टोटल 4100 ड्यू था. आउट ऑफ दैट वी हैव रिकवर्ड ओनली 2500. तो डिफरेंस अमाउंट जो भी बचता है that is 1600 will going to be treated as bad debts. Okay, उसका टोटल करके रख लेना. That will going to be a completion of your this question number 16. ठीक है, thank you very much.